So we are recording this session, and I have taken the permission from you of it. So let me know. Uh, are you aware what PT is all about? How it is made? Have you given the exam before? No, I have not, Okay. but I know about PTA, what is PTA, uh, what is in the PTA, and what are the modules in PTA. Are you aware of the breakdown? No, I am not aware about the breakdown. Okay, I will share a screen with you. I will share a picture with you. First of all, it's very important, and you should know that how they have break down the marks among the modules, right? Because in IELTS, the modules are separately marked, writing is separate, reading is separate, and stuff like that. But for PT, this is not the case. Every module is interconnected and interlinked. So just let me share a picture with you, screen with you, na? Just give me a minute. Oh, Hold on a second. खबर दे फिर खबर दे। Okay, can you see the screen? yes. 1 minute, 1 minute. Okay. Now, can you see the screen? Can you see the percentages? Yes, I can see. Okay, so the PT is basically divided into 4 modules, but every question is interconnected. Like if you go, first of all, there is speaking. Speaking, there is first question is read aloud. They give you 6 to 7 questions. This question has 33% ratio in speaking and say 27% is reading. So if you score good in read aloud, you will be getting an average of 37 and 27. You will be getting an average of 30% in both the modules. Okay. Then there is a repeat sentence. They give you 10 to 12 questions, which has a 30% ratio in speaking and 23 in listening. So iska bhi average de denge, yani it makes around 50. So they will be giving you 25 marks in both the modules. Same as the case when it comes to describe images, 20% in speaking. Retail lecture gives you 10% here and 10% here. So every question that you give is interconnected. So you should be working some questions give you like 25% and 29%. Some questions have just 1% weightage, some have 18%, some have 12%. So it depends that if you are scoring for 79, when I was aiming for 79, people usually say, oh, this question doesn't matter, this question doesn't matter, don't pay attention to this question. But this is only possible where you want to score less, like 65 or 55. But for a person, for me, 79 is the highest marks, like the full marks. So if I want to attempt full marks, I have to attempt every question. No? I cannot leave any question on choice. So now you tell me, what is your desired score? You are going for studies or 65. 65? Again, I usually prepare my students that, for example, if you prepare 80%, right, for 80 marks, Yeah. and 10 marks may be deducted for the mistakes you did, and some mistakes AI might catch. यानी कि अगर आप 80% का पेपर करते हो तो 10 गलतियां आपसे हो जाएंगी, और 10 AI जो है, जो सॉफ्टवेयर है, जो पियर्सन है, वो आपकी गलतियां निकालेगा, तो आप 70 पे जाके खड़े होंगे. If you attempt a 65% paper, so you will be making 5 mistakes, you will get 60 score. If AI is deduct some marks for the mistakes you did, so 5, 5, 10, it will be like you will be scoring 55%. ठीक है, तो आप अपना पूरा करें, पूरा पेपर करके आ जाएं. उसके बाद अगर गलतियां भी होती हैं, तो वो कहते हैं ना, गलती की गुंजाइश निश्ता. तो अगर आप गलतियां करते भी हैं तो भी आप सेफ जोन में रहेंगे. अगर आप पूरा पेपर करते हैं, अच्छा पेपर करते हैं, यू ट्राई टू अटेम्प्ट 80% ऑफ द पेपर और एटलीस्ट 75% ऑफ द पेपर. क्लियर सो फार? क्लियर सो फार? जी जी. ओके. एनी क्वेश्चन सो फार? नो. सो द मैं थिंग. इंशाल्लाह पूरे उसको करूंगा हाँ, इंशाल्लाह. सॉरी. मैंने मैंने कहा मैं पूरा इंशाल्लाह करूंगा.
एग्जैक्टली बिकॉज देखिए आप Repeat पैसे the पूरे question. पूरे देते हैं 70,000 और क्वेश्चंस भी पूरे पूरे आपके सामने आते हैं, ऐसे नहीं कि आप क्वेश्चन स्किप कर सकते हो या चॉइस पे छोड़ सकते हो। तो एक एक नंबर भी मैटर करता है। यूजली आई हैव सीन पीपल हु आर एमिंग फॉर लाइक 65 एंड दे गॉट 64। सो अगर वो एक नंबर का ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते तो शायद उनकी 65 आ जाते, ठीक है। तो इस तरह एक एक नंबर पे No लोग doubt. मार्क्स लूज कर रहे होते हैं। So this is the case, and then it's a 2 hour long exam. Speaking के questions हैं, and then there is, if you look at here, there is summarized written text. It's a part of a writing. Then there is a essay. अच्छा, templates. You have seen people talking about templates in the group. They usually say कि Yes, I am. ये template work करता है, ये template तो से वो एक दूसरे से मांग रहे होते हैं कौन सा template use किया था। देखिए templates शबाना सही बंद करें, डाटो डाटो बंद करें, कपड़ा फासा है ना बीच में। सो टेम्पलेट इज बेसिकली अ सैंपल, ठीक है। अगर आपको आंसर्स नहीं आते हैं, इफ यू डोंट नो द आंसर्स एंड यू आर यूजिंग द टेम्पलेट, इट्स ऑफ नो यूज। क्योंकि व्हेन पियर्सन गिव्स यू एन एग्जाम, व्हेन दे गिव यू अ क्वेश्चन, तो मैं खुद टीचर हूँ, जब मैं पेपर बनाती हूँ तो अगर मैं सवाल देती हूँ ना तो उसका आंसर की बनाती हूँ। और जाहिर सी बात है जो मैंने सवाल पूछा है मुझे उसके जवाब चाहिए। अब टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट में ज्यादातर वो चीजें लिखी हुई होती है जो एप यूनी ने पूछा हुआ होता है ना, पीटीई ने, वो उसका आंसर नहीं। मतलब कहने का कि टेम्पलेट में जो अल्फाज लिखे हुए होते हैं वो नहीं है जो उनके आंसर की होगी, आंसर की उन्होंने खुद बनाई हुई, Definitely. ठीक है। अब क्या होता है कि लोग टेम्पलेट के पीछे पड़े हुए होते हैं, तो दे मेमोराइज करके जाते हैं, एक पहली बात तो वहां भूल जाता है। इट हैपन टू मी माई सेल्फ, आई फॉरगॉट द टेम्पलेट ओवर देयर, ठीक है। सेकेंडली वो पूछ कुछ रहा है और टेम्पलेट में जैसे एग्जांपल वो आपको कहते हैं कि मीडिया के बारे में कुछ लिखे, अब टेम्पलेट में कहीं पे भी वर्ड मीडिया नहीं लिखा हुआ, तो फिर मार्क्स देगा वो आपको? नहीं देगा, No. ठीक है। तो टेम्पलेट का मकसद सिर्फ इसलिए होता है कि वो जैसे मोइन खान का वो है ना मीम है, मैं गुस्से में इधर इधर निकल जाता हूँ। तो टेम्पलेट का सिर्फ इसलिए है कि आप जो है वो इधर इधर की बातें ना करें, एक तरीके से आंसर्स लिखें। तरीका आपको उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि आप ऐसे स्टार्ट करेंगे, देन यू विल राइट दिस वे एंड देन यू विल मूव इन अ वे ओवर द क्वेश्चन, ठीक है। सो जस्ट टू गिव अ स्ट्रक्चर्ड आंसर, टेम्पलेट इज इंपॉर्टेंट, बट द आंसर शुड एड्रेस द क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड। जो आपसे पूछ रहा है वो उसको आप जवाब दीजिए। हाँ, पूरे लाइन जो आपसे वो पूछ रहे हैं एटलीस्ट आप उसको वो जवाब दे रहे हो, ठीक है। जी जी। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? नहीं। अच्छा, सेकंड ये तो टेम्पलेट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। लोग जो है वो उसको सेल भी कर रहे होते हैं, तो डोंट वो उनकी बात नहीं सुनिएगा, टेम्पलेट्स खरीदिएगा नहीं। टेम्पलेट्स खुद ये जो ऐप, अच्छा ऐप यूनी की, फिर आपके लिए इसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो इसमें एक दो क्वेश्चन से नहीं पता चलता, एक दो मॉक से नहीं पता चलता, आपको अच्छे खासे मॉक्स करने पड़ते हैं देखने के लिए कि क्या आपको डिजायर्ड स्कोर आ रहा है कि नहीं आ रहा। इवन व्हेन आई वाज गेटिंग 80, तो मैं ये नहीं कि एक दफा 80 आ गया और छोड़ दिया, मैंने 4-5 और मॉक्स दिए टू रियलाइज, टू फिगर इट आउट दैट एम आई एबल टू मेंटेन माय सस्टेन माय स्कोर और नॉट, ठीक है। तो उसके लिए मैंने सब्सक्रिप्शन ली थी, जो कि इनको खुद इसको पे करना पड़ता है, तो इनको 6,000 दे के आप पे कर ले। मैंने भी 6,000 का खरीदा। फिर मैंने ये क्या किया कि कुछ लोग मांग रहे होते थे ना, तो मैं उनको क्या कहती थी कि अच्छा आप मुझे जितना दिन में यूज करना है कर दो, आप मुझे 100 रुपए दे दो, क्योंकि एक इंसान कोई भी 24 घंटे ऐप की सब्सक्रिप्शन यूज नहीं कर पाता। सो व्हाट आई यूज्ड टू जी डू बिल्कुल। इज व्हेन, जब मैंने एक मूव दे दिया तो फिर सारा दिन मेरा फारिग होता था। तो मैं लोगों को कहती अगर आपको चाहिए मैं आपको पासवर्ड दे देती हूँ, आप जितना यूज करो, बट आपने 100 रुपए मुझे देने। तो 100 रुपए सिर्फ रहने का मकसद ये होता था ताकि कोई मेरी चीज को ना गलत ना यूज कर लेना, क्योंकि हमारे लोगों का है जी मसला, जी। अगर मुफ्त में कोई चीज मिलती है तो फिर तो दिमाग खराब। तो फिर वो यूज कर लेते थे और मुझे 100 रुपए, कभी कभी ऐसा होता था वो 100 नहीं देते थे, तो मैं पासवर्ड चेंज कर लेती थी कि भाई आपने कमिटमेंट किया और 100 रुपए नहीं दिए। तो इस तरह मैं अपना खरीदा और दूसरों के साथ शेयर किया, 100 रुपए ले लिए, किसी ने जो है वो 2 दिन के लिए मांग लिया तो 2 दिन के लिए दे दिया और उससे 200 रुपए ले लिए। तो आप इस तरह कर सकते हो, यू कैन सेव योर मनी लाइक दैट। आपको पूरा मैंने वॉइस नोट सुना था दैट यू कैन नॉट अफोर्ड दिस एंड दैट, बट महंगा पड़े एक बार, सस्ता पड़े बार बार, ये याद रखिएगा। थोड़ा सा इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। टेस्ट आपका 70,000 का होता है, फिर आपको 6,000 की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। सो दिस एग्जाम टेक्स अ लॉट ऑफ मनी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ कमिटमेंट, बट इफ यू आर सक्सेसफुल इन गेटिंग योर डिजायर्ड स्कोर, कोशिश करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मार्क्स ले लें ताकि आपको बार बार ये महंगा टेस्ट ना देना पड़े, ठीक है। जी जी।
Okay. Anything else you want to know? About what? Sorry, About what? about PT. तकरीबन नहीं, ये जो आपने टेम्पलेट का बोला था ना, पहले टेम्पलेट में यूज कर रहा था, हम्म लेकिन बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मतलब इस तरह कोई ना खास वो वर्क नहीं कर रहे थे ना। एग्जैक्टली देखिए, मैं अब एक सिंपल आपको एग्जांपल देती हूँ। अभी मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ, ठीक है। ये मैं इस पे गई, और टेम्पलेट ज्यादातर ये लोग आपको देते हैं डिस्क्राइब इमेज का, और देते हैं आपको उसका रिटेल लेक्चर का, ऐसा ही। ये जी जी। ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर आपको ये क्वेश्चन दिखा रही हूँ, ये क्वेश्चन है, ठीक है, और ये सवाल है, और आप जो है ना, आपको जो भी टेम्पलेट है इसको पढ़ें, ठीक है। आप मेरे अब फॉर एग्जांपल टेम्पलेट है, टेम्पलेट में जो पूरा टेम्पलेट दिया गया, क्या आपको लगता है कि उसमें ये चीज लिखा हुआ होगा? नंबर ऑफ यूएस हाउस होल्ड कीपिंग पेट्स टोटल 84.9 मिलियन, डॉग्स 863.4 मिलियन। क्या टेम्पलेट में इस तरह की बातें लिखी हुई होती है? नहीं। नहीं होती। देखिए, जो सवाल है, ठीक है, आप ऐप यूनी ने इसी सवाल, इसी तस्वीर को आंसर बनाया। वो आपसे कह रहा है कि इस तस्वीर को डिस्क्राइब करें। अब आप टेम्पलेट जब पढ़ते हो तो टेम्पलेट का मतलब ही सैंपल है, वो सिर्फ ये कि आप तरीके से स्टार्ट कर रहे हो, फिर तरीके से मिडल को लेके चल रहे हो, फिर तरीके से एंड कर रहे हो। वो तो आपने बोल दिया, मगर इनमें से कोई चीज आपने नहीं बोली, तो आपको लगता है वो मार्क्स देगा? नहीं। नहीं। इसका सिंपल तरीका ये है कि जो तस्वीर में लिखा हुआ है वो आप तरीके से बोले। आप उसमें कोई वो आप अटक नहीं रहे, आप कोई प्रोनाउंसिएशन की गलती नहीं कर रहे, आप कोई फ्लंसियो की गलती नहीं कर रहे, और कोशिश करें कि जितना कंटेंट इसके अंदर मौजूद है वो आप उसको पढ़ लें, ठीक है। और कोई भी लफ्ज इस पे रिपीट ना करें, सिंपल एज दैट। सिर्फ यही कहानी है। डिटेल लेक्चर में भी ये है कि जो उसने लेक्चर दिया है, आप लोग क्या, आप जो टेम्पलेट में लफ्ज है उनमें से कोई भी ऐसा लफ्ज नहीं होगा, हाँ द एन, ये लफ्ज टेम्पलेट के आपके लेक्चर से मैच कर जाएंगे। मगर अगर वो इन्वायरमेंटल साइंसेस के बारे में बात कर रहा है, और आप टेम्पलेट में कह रहे हो कि स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट दिस इन्वायरमेंट, तो ऐसे मार्क्स नहीं है, ठीक है। मार्क्स जिस तरह आते हैं ना, अगर मैं हूँ, इस तस्वीर को कैसे डिफाइन करूंगी? हियर इज एन इंफॉर्मेटिव पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मी। इट इज अबाउट नंबर ऑफ यूएस हाउस होल्ड्स कीपिंग पेट्स. I can see the highest value is for total, that is 84.9 million. The lowest value is for horses and saltwater fish, that is 1.6 million. Others are dogs at 63.4 million, cats are at 42.7 million. I can also see that freshwater fish is 11.5 million, birds 5.7 million, reptiles are at 4.5 million. Others are at 5.4 million. In conclusion, it is an important picture. क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं था, सिर्फ पहली लाइन मेरे टेम्पलेट की बोली, आई सी अ ब्यूटीफुल पिक्चर, और आखिरी लाइन मैंने टेम्पलेट की बोली, इन कंक्लूजन इट इज अ इम्पोर्टेंट पिक्चर। बाकी जो भी तस्वीर में लिखा हुआ था वो मैंने पढ़ लिया विद फ्लुएंसी। उसमें कोई लफ्ज मैंने चबाई नहीं, और कोई जो है वो नहीं किया। यही है बस। नहीं, क्या आप अगर इस पे टेस्ट दें तो आप इस जो आपने बोला इसमें कितने मार्क्स आ जाएंगे? मेरे टेस्ट दिया हुआ है, मेरे 80 अबव ऑल आए हुए हैं। मैं एक मिनट में आपके साथ अपना स्कोर शेयर करती हूँ। मेरे स्पीकिंग में 87 है माशाल्लाह से, मेरे रीडिंग में 81 है, स्पीकिंग इन लिसनिंग आई गॉट 82, एंड इन राइटिंग आई गॉट 84, और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया, क्लियर किया। ये माशाल्लाह, कोई मैंने ये कंग्रेचुलेशन। टेम्पलेट शम्पलेट की ना कहानियां, क्योंकि मेरा रट्टा बहुत बुरा है, हूँ मैंने टेम्पलेट जम्पलेट की कोई कहानियां नहीं की। ऐसे में मैंने याद तो किया था, मगर वहां मुझे टेम्पलेट भूल गया। हालांकि इतनी मैंने प्रैक्टिस की थी, तो मुझे लफ्ज एक ऐसे में मेरा था सर्टनली, वहां पे मुझे सर्टनली की डेफिनेट स्पेलिंग भूल गई। अब नहीं आ रही तो क्या जबरदस्ती लिखूंगी? फिर मैंने डेफिनेटली लिख दिया। जी जी। तो हर चीज का तरीका होता है, और उसकी एक शॉर्टकट ये है कि आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करें। और जहां अटक रहे हो तो आप जो है वो रेलिवेंट बंदे से पूछें, जिसने किया हुआ हो, टेस्ट किया हुआ। ग्रुप में बहुत से लोग हैं जिन्होंने किया है, बहुत से हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत सुनाई जो बातें वो कर देते हैं। जब एक बंदे खुद का एक्सपीरियंस, इवन अगर आप कोचिंग सेंटर भी किसी को ज्वाइन करते हैं, तो पहले उससे ये पूछ ले कि अगर खुद ने उसने टेस्ट दिया है, या व्हेन वाज द लास्ट टाइम ही गेव द टेस्ट। When I was preparing, I called so many people. I'm in Karachi. So in Karachi तो आपको पता है कितने कोचिंग सेंटर्स है। I called every कोचिंग सेंटर, एक साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि जी मैंने कभी टेस्ट दिया ही नहीं। कह रहे मेरे बच्चे फिर भी 90 लाते हैं। मैंने कहा मुझे उससे कंसर्न नहीं, बच्चे क्या है क्या नहीं, आई जस्ट फोन यू कि आपने टेस्ट दिया, कहता नहीं।
एक साहब से पूछा, उन्होंने कहा मैंने 4 साल पहले टेस्ट दिया हुआ है। भाई हर 6 मंथ्स के बाद ये इसका पैटर्न चेंज होता रहता है। एंड यू आर सेइंग यू गिव 6 years बैक। फिर एक साहब थे, उनसे मैंने डेमो ली तो वो कह रहे आपको तो कुछ नहीं आ रहा, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा आप समझाओ ना, इट्स योर जॉब टू मेक थिंग्स क्लियर फॉर मी। फिर मैंने कहा भाई छोड़ दो, मैं खुद ही कर ले, बिकॉज वो एट अ टाइम कोई एक और कोचिंग सेंटर के एट अ टाइम वो 10 लोगों को कैटर कर रहा था। वो वहां से बुला रहे सर थोड़ा ये देख रहे, हाँ हाँ आता हूँ, ओके ओके फाइन। इवन इफ यू गोइंग टू द कोचिंग सेंटर, यू आर पेइंग मनी टू देम, आप देखिए कि वो आपको, फिर एक कोचिंग सेंटर था, उन्होंने कहा हाँ आ जाए। मैं वहां गई तो पता चला आइल्स की क्लास ले रहे। मैं कहा मैंने पीटी की लेनी है, कहते हम पीटी कराते हैं। मैं कहा भाई बुलाया क्यों? तो थिंग्स आर हैपनिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रॉड गोइंग ऑन इन दिस वे आल्सो। सो बी केयरफुल। और अगर आपने सेल्फ स्टडी करनी है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी चीजें आपको सूट करनी है, एंड बी वेरी केयरफुल। इफ यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन इन द ग्रुप, द पर्सन शुड हैव हिम और हरसेल्फ गिवन द टेस्ट। ठीक है, उनमें से आधे लोग ऐसे जिन्होंने खुद नहीं टेस्ट दिए। जी जी, सही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ नहीं, मैं वो दरवाजा बंद करने चली गई थी। जी पूछे क्या कह रहे हैं। जी मैं यही कह रहा था कि बिल्कुल ऐसे ही है, उनमें से मोस्टली ने नहीं दिया हुआ। अब जिस तरह उन्होंने किया था कि उन्होंने मुझे सेंड किया पहले, तो मैंने वो लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद जब मैंने उनको पैसे सेंड किए तो उसके बाद उन्होंने पासवर्ड चेंज कर लिया और मुझे ब्लॉक कर हाँ दिया। वो ऐसे ही है, ठीक है, छोड़ दे ये जो भी हो गया। ठीक है। हाँ हाँ हो गया जो हो गया। ये तो फिर भी अब कम लॉस है। लोगों के 40-40 हजार रुपए भी जाया हुए, 70 हजार रुपए भी जी जाया हुए। जी और अगर आप जाहिर से पहले पहले 70 गए तो दूसरा बुक कराओगे तो 70 और 70 एक 40 हो गया। फिर कुछ ऐसे लोग जी हुए जी जिन्होंने डेफिनेटली। इससे धोखा नहीं खाया, मगर उन्होंने सही तैयारी नहीं की और 5-5 अटेम्प्ट्स किए। तो आप सोचिए 70 का टेस्ट है, 7 5 35, 3.5 लाख रुपए खर्च किए। तो ये भी जी जी हुआ ये है। सही है। तो ये बहुत सी सिचुएशन है। और इन यू कैन नॉट हेल्प इट, यू हैव टू गो थ्रू दिस थिंग्स। एंड दीज आर नॉट इन योर कंट्रोल। सो बस दुआई की जा सकती है कि पहले अटेम्प्ट पे निकल जाए टेस्ट। जी दुआ के साथ फिर दवा भी जरूरी होती है, तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह हो तो जाएगा, तैयारी वो तो इशू एग्जैक्टली, नहीं तो है। तैयारी आपको तरीके वाली, क्वांटिटी वाली नहीं करनी, क्वालिटी वाली तैयारी करनी। और थोड़े जी जी सब्र के साथ और प्रॉपर गाइडेंस के साथ। ये मेक श्योर करें कि जिसने दिया है उसके अपने कितने मार्क्स आए हुए हैं, वो वाकई उसने दिया है या वो फेक किसी का रिजल्ट दिखा रहा है। और अपने कितने आए हुए और उसने दिया भी। अब ये फेसबुक पे एक खातून है, मैं नाम नहीं लेना चाह रही, मैं ले सकती हूँ, मैं डरती नहीं हूँ। वो किसी और के रिजल्ट उठा उठा के ना पेस्ट करी हो कि ये मैंने, मेरे जी बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, और ये वो। तो एक दफा उन्होंने रिजल्ट पेस्ट किया तो वो बंदा ना मेरे पास पढ़ रहा था भी। उसके फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो मैंने उसको कहा कि ये अब का स्टूडेंट था। कह रही हाँ। मैंने कहा तो उसके कितने मार्क्स डिजायर्ड थे? कह रही थी उसके ना बाकी में सब में 80-80 थे, स्पीकिंग में उसका कम था। तो कह रही कि 65। तो मैंने स्टूडेंट से पूछा आप मेरे पास पढ़ रहे हो, आप मुझे कह रहे हो मुझे इतने चाहिए, वो खातून 65 कह रही है। कह रहे कहाँ? मैं कहा फेसबुक पे पोस्ट है। कह रहे भेजे लिंक। मैंने लिंक भेजी, फिर उन्होंने उसको कहा कि रिमूव करे। असल में उनसे उन्होंने पढ़ा था, डिजाइड स्कोर नहीं आया। बट हमें क्या पता कि वो जी जी सच बोल रही है झूठ बोल रही है, राइट? तो बड़ा केयरफुल होके चलना पड़ता है। और वो आए दिन सक्सेस स्टोरी सक्सेस स्टोरी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने जिसका रिजल्ट दिखाया है उसका डिजाइड कितना था? कहती 68। मैं कि उसको किसके लिए चाहिए? कहती मास्टर्स। नीचे उस शख्स की डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई थी, जो एज उसकी 45 बनती थी। 45 वाला बंदा मास्टर्स में जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं। तो इस तरह के भी पढ़े हुए हैं बहुत से लोग, किसी के भी रिजल्ट्स उठा के। तो आप इसलिए अपने रिजल्ट्स जो है वो फेसबुक नहीं शेयर करने चाहिए। मैंने भी एक दफा शेयर किया था तो किसी खातून ने उठा लिया था, फिर मैंने उनको कहा कि जी इसको रिमूव करें, ये मेरा स्कोर है, मैंने आपसे नहीं पढ़ा। सो थिंग्स आर हैपनिंग, केयरफुल होके चलना पड़ता है जेन्युइन लोगों के पास। सो दैट्स व्हाई मैंने कोशिश की है थी कि मैंने जितने फ्री डेमोज दे सकूं लोगों को दूं। एंड आई हैव गिवन अराउंड 60 फ्री डेमोज। और उनमें से 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सक्सेस रेट, स्पीकिंग, सिर्फ स्पीकिंग में उन्होंने हेल्प ली थी और उनका आ गया था। तो आपने मैम किस कंट्री के लिए अप्लाई किया हुआ है? मैंने डिफरेंट देखी हुई, अब लेट्स सी क्या लक निकलता है। अच्छा अच्छा, मतलब अभी आपका मतलब कोई ये जो है कोई प्रॉपर आपने सेलेक्ट नहीं किया कि मैंने इस कंट्री पे जाना है? आप हर जगह डिफरेंट जगह अप्लाई करते हो ना, जहाँ से लग निकल जाओ, चांसेस आ जाए। हाँ जी, ये भी है। नहीं, मेरी कोई डिसाइड कंट्री तो होता है ना कि मैंने इसमें ही अप्लाई करना है। नहीं मेरा ये होता है कि आप डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई करो। पीटीई तो हर जगह चलता है। जी जी बिल्कुल। हायर स्टडीज के लिए भी तो हर जगह चलता है। आपने खुद अप्लाई किया है या किसी कंसल्टेंट के थ्रू किया?
मैंने कंसल्टेंसी से हेल्प ली थी, बट मेरा काइंड ऑफ लॉस हो गया, नुकसान हो गया। उन्होंने, वो कोई काम नहीं करते, वो आपकी चीजें रख लेते हैं और फिर कहते हैं नहीं जी आपका वीजा रिजेक्ट हो गया। कोई काम नहीं करते, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो जब मैंने उनको कॉल की, जो रेलिवेंट अथॉरिटीज थी, उन्होंने कहा हमारे पास तो इस नाम का कोई केस नहीं आया। मैंने उनको कॉल की कि जी हम्म। अच्छा बताएं, वो होता है ना आप वो करते हो अपील वगैरह, तो मैंने कहा चलो मैं खुद ही अपील जी जी करती थी। तो मैंने जब रेलिवेंट इदारों से वगैरह से बात की, तो मैंने कहा कि आपके एक दो आए थे कागज जो थे वो कुछ मिसिंग थे, तो उन्होंने प्रॉपरली कोई कागज नहीं जमा कराया, कोई जमा कराना था तो वो लेके बैठ के रख गए। पर मेहनत करे ना बंदा, अगर आपने किसी से पैसे लिए, मुंह भी आप इतना बड़ा बड़ा खोलते हो। तो कहा कि हमने कोई हम्म, खरा कागज उनसे मांगा था, वो उन्होंने हमें प्रॉपरली नहीं दिया, तो इसलिए फिर केस रिजेक्ट। क्योंकि बाय ना वो कागज पे बहुत है, आप और मैं नहीं बैठे हुए जिसको देख के वो अंदाजा लगाएंगे। वो कागज है जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें लिखा हुआ एक एक वर्ड। जैसे मैंने ये कहा ना कि टेम्पलेट नहीं मैटर कर रही, वो आपसे कुछ जी जी पूछ रहा है, आप टेम्पलेट में कुछ बता रहे हो, तो वो मैटर करता है कि आपने सिर्फ लिख के दे दिया इज नॉट इनफ। उसमें क्या जो चीज चाहिए थी वो आपने उनको प्रोवाइड की कि नहीं की, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जमा कराए वो ठीक नहीं थे। तो इस तरह मेरा होए नुकसान हो। तो मैं वही कह रही हूँ कि काफी चीजें चल रही हैं, तो हमें ये भी नहीं पता होता कि एजेंट ने पैसे लेके रख लिए, ये वाकई काम कर रहा है। जी। मेरे रूममेट के साथ ऐसा हुआ है। उसने इधर अप्लाई किया हुआ था यूके के लिए, तो उसकी फीस वगैरह भी सबमिट हो गई, उसका टेस्ट भी हो गया, उसका जो है स्टेटमेंट भी उसने रखी हुई थी। तो अभी मतलब वो उसका ना अभी आगे वो प्रोसेस नहीं हो रहा। तो जब उसने मतलब पता किया तो उन्होंने कहा है कि जो जिस कंसल्टेंट के थ्रू उन्होंने किया था ना, मतलब उनका वहाँ पे कोई नहीं है, लिंक नहीं है हाँ वहाँ पे। एग्जैक्टली। असल में मसला क्या होता है ना, वो लोग देखिए हर हाँ, हर अगर चीज, आपका लिंक ही नहीं है तो आप उसको कोई हमारी यूनिवर्सिटी का लिंक नहीं है, आपके कहीं और चले जाओ। मगर उन्होंने पैसे तो ले लिए ना, और बाद में ना थोड़ा टाइम गुजरने के जी बाद कहते हैं आपका वीजा रिजेक्ट हो गया, आपकी एडमिशन नहीं हुई। सिंपल, सबसे पहले ये कहते हैं हाँ एडमिशन हो गई है, अब हम वीजा के लिए अप्लाई करें तो रिमेनिंग पैसे दे दें। तो जो है और पता चला कि जी वो उन्होंने अप्लाई नहीं किया हुआ था। तो मेरे केस में उन्होंने बोला आपका ये हो गया है, तो आप नेक्स्ट स्टेप के पैसे दे। वो कोई मुझसे $4,000 ले रहे थे। मैंने कहा वो स्टेप जी। कहाँ है, मुझे दिखाए ना, मुझे तो कोई ईमेल नहीं आई, कुछ भी नहीं आया, क्या मतलब कहाँ हवाओं में कह रहे हैं महंगा दिखाएं। उनका ये तो उन्होंने नहीं दिखाया, फिर मैंने खुद कॉल की तो उन्होंने बोला ऐसे कुछ भी नहीं है, आपका कागज कुछ चाहिए था उन्होंने जमा ही नहीं कराया। वो सारे चल रहा है यहाँ पे, हमारे वो और हमारे तो अपने आपकी डिग्री कौन सी है मिस? मेरी पीएचडी है मैनेजमेंट में। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। चले, और कोई बात हो तो मैं तो खाना खा लूँ, टाइम हो गया। जी जी मिस, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। अच्छा, बी केयरफुल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर थिंग्स। मैं सेशन एंड करूँ? चले, ओके मैम, ओके थैंक यू। जी। मैम कैन यू शेयर योर पीटी? हाँ वो सेल फोन में मैं करती हूँ। मैं ओके थोड़ा मैम, थैंक वो 1-2 सेकेंड्स वाला जो टाइमर होता है वो लगा के करूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा होता है ना कि नजर लगती है। सही। यू। जी जी मैम, ओके ठीक है, मैम, थैंक ओके। यू।